Assalamu alaikum for class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit 1A, A Night in June. A Night in June. जून की एक रात means it's all about summer season. So before going to start my lecture, I want to appreciate Adil Manaf and Shamir Tariq for their great work because they are answering my question. Okay, well done Shamir, Tariq and Adil Manaf. You are doing very well. Keep it up. So students, let's start. First of all, we will discuss about the poet of this unit, William Wordsworth. William Wordsworth is the poet of this poem. William Wordsworth was encouraged to read and memorize classic poetry from a young age. He began to write his own poems when he was still a child. His poems became popular in his lifetime and he was the poet laureate for the last 7 years of his life. Many of his poems are about experiencing the beauty of the natural world. So here students, William Wordsworth is nature loving poet. विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक नेचर लविंग मीन्स उसको कुदरत से बहुत प्यार था, यानी वो कुदरती चीज़ों को बहुत पसंद करता था जो अल्लाह ताला की तरफ से बनी होती हैं. ठीक है. ही रोट मैनी पोएम्स बेस्ड ऑन नेचर, यानी उसने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी रिलेटेड टू नेचर. ऑलमोस्ट उसकी सारी जो पोइट्री है वो नेचर से ही रिलेटेड है. In this poem he is describing the beauty of summer night. So इस poem में वो समर गर्मियों की रात का एक खूबसूरत मंज़र जो है, सीन जो है वो हमें डिस्क्राइब कर हमें बता रहा है. So students, इसके नेचर लव की वजह से इसने काफ़ी सारी poems लिखी. ठीक है. और वो इसकी poems जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हुई और इन poems की वजह से उसको पोइट लॉरिएट मीन्स एक ऑनर जो है, ऑनर है लाइक शील्ड ऑफ ऑनर. ठीक है. उसको ये एजाज़ दिया गया. ठीक है. यानी उसकी पोएम्स को एक पॉपुलैरिटी की वजह से उसको पोइट लॉरिएट का एजाज़ दिया गया फॉर लास्ट 7 ईयर्स. इन 7 साल के लिए उसको ये एजाज़ जो है उसको मिला था. ठीक है. Now here students, here are some sight words. Cuckoo, a type of bird. Cuckoo, a type of bird. कोयल जिसको हम कहते हैं. ठीक है. Gushes, pours, floods, streams. Gushes का मतलब होता है बहना, पानी का बहना. Peeping, whistling, twittering, singing, चहचहाना, यानी birds peeping, परिंदों का चहचहाना. sovereign mean ruler. Okay, superior. Thrush, a type of bird. थ्रश जो है वो स्पैरोज की काइंड होती है, बर्ड्स होते हैं. ठीक है. Yet, still, even now. Yet means अभी तक, यानी कोई काम जो है वो still अभी तक हो रहा है. Okay. Now let's start the reading of the whole poem. The sun has long been set. Yes, set mean गुरूब हो जाना. The stars are out by 2s and 3s. इन सितारों का एक एक दो दो करके आहिस्ता आहिस्ता निकलना, अपीयर होना. The little birds are peeping yet among the bushes and trees. There's a cuckoo and 1 or 2 thrushes, and a far off wind that rushes, and a sound of water that gushes, and the cuckoo's sovereign cry fills all the hollow of the sky. So students, रात हो गई, सूरज डूब गया, सितारे एक एक दो दो करके आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर नमूदार हो रहे हैं. परिंदे छोटे जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वो अभी तक चहचहा रहे हैं. ठीक.
और वो कहाँ पर है? अमंग बुशेस एंड ट्रीज, यानी दरख्तों और झाड़ियों के बीच में है। फिर और उसके अलावा क्या है? कुकू कोयल है, और उसके अलावा एक या दो थ्रशेस यानी चिड़ियाँ मौजूद हैं। दूर यानी रात के वक्त स्टूडेंट्स, ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि रात के वक्त बहुत खामोशी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खामोशी होती है, ज़रा सी आहट जो है वो भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। यानी दूर अगर हवा चलती है तो उसकी भी, हवा के चलने की भी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, पानी के बहने की आवाज़ आपको सुनाई देती है, और उसके अलावा आसमान में जो कोयल जो है वो कू कर रही होती है, कोयल की जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, आसमान तक जो है वो जाती है, बहुत ज़्यादा लाउड होती है, ठीक है। क्यों लाउड होती है? बिकॉज़ रात के वक्त बहुत खामोशी होती है। ओके, अगेन हम रीडिंग कर लेते हैं। The sun has long been set, the stars are out by twos and threes, the little birds are peeping yet among the bushes and trees. There's a cuckoo and one or two thrushes, and a far off wind that rushes, and a sound of water that gushes, and the cuckoo's sovereign cry fills all the hollow of the sky. Okay, now come to next page, page number 10. Here, exercise A, part 1. Answer the following questions. Answer the following questions. First one is, how are the stars appearing in the sky? यानी आसमान पर सितारे जो हैं वो किस तरीके से अपीयर हो रहे हैं, ज़ाहिर हो रहे हैं? Stars are appearing by twos and threes, यानी दो दो तीन तीन करके, आहिस्ता आहिस्ता करके वो आसमान पर नमूदार हो रहे हैं। Have the birds stopped their singing? यानी रात हो गई है तो क्या परिंदों ने अभी तक चहचहाना बंद कर दिया? No, they are still singing, यानी वो अभी तक चहचहा रहे हैं। Where are the little birds? छोटे परिंदे कहाँ पर हैं? The little birds are among the bushes and trees, यानी वो bushes और trees में हैं। नेक्स्ट, व्हाट साउंड्स कैन बी हर्ड? यानी आप उस रात के वक्त आपको कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती हैं? साउंड ऑफ कुकू, ओके, कोयल की आपको आवाज़ सुनाई देती है। बर्ड्स पिपिंग, परिंदों के चहचहाने की। वाटर गशिंग, यानी पानी जो बहता है। फॉर ऑफ विंड दैट रशेस, दूर जो हवा चलती है। और उसके अलावा कुकू सोवेरेन क्राई, यानी कोयल की ऊंची आवाज़। What fills the sky? यानी आसमान तक बहुत ऊंची आवाज़ किसकी थी? The cuckoo's sovereign cry fills all the sky. Okay. Now come to next part 2. Answer the questions about this line from the poem. The little birds are peeping yet. छोटे परिंदे अभी तक चहचहा रहे हैं। फर्स्ट है, दिस सेंटेंस मीन्स, कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? देयर आर 3 ऑप्शंस, वी हैव टू चूज वन एंड वी हैव टू टिक इन फ्रंट ऑफ द राइट वन। 3 ऑप्शन है स्टूडेंट्स, तो जो ट्रू होगा वो उसके सामने हम टिक लगा देंगे। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? फर्स्ट इज, द बर्ड्स आर लिटिल बट दे आर पिपिंग, परिंदे छोटे हैं लेकिन फिर भी वो चहचहा रहे हैं। नो, द बर्ड्स आर स्टिल पिपिंग इवन दो इट इज़ लेट, यानी परिंदे अभी तक चहचहा रहे हैं जबकि बहुत देर हो चुकी है। नेक्स्ट, द बर्ड्स आर पिपिंग बट नो, ये भी रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, कि परिंदे अभी तक चहचहा रहे हैं अगरचे बहुत देर हो चुकी है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन टिक है आपका। नेक्स्ट बी क्वेश्चन इज, व्हाट टाइम ऑफ डे इज़ इट? यानी ये दिन का कौन सा वक्त हमें इस पोएम में बताया जा रहा है? नाइट टाइम के बताया जा रहा है ना, रात का वक्त बताया जा रहा है। ओके, इट इज़ द नाइट। नेक्स्ट, वेयर आर द बर्ड्स पिपिंग? परिंदे जो हैं वो किधर चहचहा रहे हैं? अमंग द बुशेस एंड ट्रीज, यानी दरख्तों और झाड़ियों के बीच में परिंदे जो हैं वो चहचहा रहे हैं। What kinds of birds are mentioned in the poem? पोएम में किस तरीके के, कौन से परिंदों का जिक्र किया गया है? कुकू का, 1 or 2 thrushes, यानी कोयल के बारे में बताया गया, और 1 या 2 thrushes यानी चिड़ियों के बारे में मेंशन किया गया है। डन। नेक्स्ट इज,
नोट डाउन द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम. राइमिंग वर्ड्स स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साउंड्स जो हैं वो सेम होती हैं, स्पेलिंग डिफरेंट होती हैं, साउंड सेम, लाइक गेट, बैट. ओके ये अब यहाँ पर हमने देखा सेट, येट, थ्रीज, ट्रीज, थ्रशेस, रशेस, गशेस, ये तीनों राइमिंग वर्ड्स हैं. क्राई, स्काई, इन जिन ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होती है. ओके दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. नेक्स्ट पार्ट 5, फाइंड द ऑड वन पुट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट. नीचे जो हमें लिस्ट दी गई है, हमने हर लाइन में से जो जिसके साउंड मैच नहीं होते जिस वर्ड के, उसको हमने सर्कल कर देना है या अंडरलाइन कर देंगे. इन फर्स्ट सेट, मेट, डेप्ट, गेट, गेट, ईट, थ्रेट. सो इसमें क्या हुआ, ईट की डिफरेंट साउंड थी, सो वी विल अंडरलाइन इट. नेक्स्ट फ्रीज, ईज, पीस, ट्रीज, फ्रीज, पीस, ब्रीज. फ्रीज, ईज, पीस, ट्रीज, ब्रीज, फ्रीज. सो इसमें बाकी सब के लास्ट पर साउंड आ रही है, फ्रीज, ज साउंड. थर्ड वाले में साउंड आ रही है, स साउंड, पीस. सो पीस को आप अंडरलाइन करेंगे, इट्स ऑन ऑड वन. नेक्स्ट रशेस, घशेस, बुशेस, क्रशेस, फ्लशेस, थ्रशेस. सो डेफिनेटली बुशेस जो है वो डिफरेंट आ रहा है, ऑड आ रहे हैं, अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट डाई, स्काई, क्राई, फ्राई, हाई, नी, बाय. सो ने ये ऑड साउंड है, सो यू हैव टू अंडरलाइन इट. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर है. आपने इस यूनिट को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है और क्वेश्चन आंसर्स RTC ये आपने अपने नोट से लर्न करना है. ओके टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.